براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے پھر سے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کے کلام کی باتوں پر غور کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، برکت پا سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گمراہی کیا ہے۔ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں بہت واضح طور سے کہ زندگی کی راہ پر لوگ زندگی لوگوں تک پہنچانے والے بنتے ہیں، لیکن موت کی راہ پر چلنے والے موت پیدا کرنے والوں کے ہاتھوں میں کھیلتے اور اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو برباد کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ اس لیے آج بہت اہم موضوع، خدا اپنی باتیں انسانوں تک پہنچاتا تھا، پھر انسانوں کا معاملہ کہ وہ کس طرح سے رد عمل کرتے ہیں، مانتے ہیں اور رد کرتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ موضوع گمراہی کیا ہے، پہچان اور آگاہی کیسے ہو۔ یہ لفظ گمراہی اتنا زیادہ استعمال ہمارے معاشروں میں ہو رہا ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو کہتا رہتا ہے کہ تم گمراہ ہو، ایک فرقہ دوسرے کو کہتا ہے تم گمراہ ہو، اور یہ لفظ اپنی اہمیت، معنی اور حقیقت کو کھوتا جا رہا ہے۔ اس لفظ گمراہی کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے اس کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ سورہ الاعراف قرآن میں، بائبل میں، توریت کی کتاب اس کے پہلے 5 ابواب اور سورہ نمبر 7ویں سورت ہے، اس کی 20 سے 25 آیات اور دیگر آیات بھی ہیں۔ ان میں آپ کو پس منظر پتہ چلے گا۔ جب لفظ گمراہی آپ کے سماعت سے ٹکراتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، نہ کہ جو لوگ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، جو لوگ آپ پر اپنا فیصلہ یا اپنی بات یا اپنی تعلیم یا اپنا فتویٰ ٹھونسنا چاہتے ہیں کہ آپ مانیے۔ ان 2 کتب میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خدا نے جب پہلے انسان کو، آدم اور حوا کو تخلیق کیا تو خدا نے ان کو احکام، واضح احکام دیے، یہ تمہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس راہ پر رہنا ہے، اس راہ پر نہیں رہنا۔ تو خدا کی بات کو قبول کرنا، راہ پر رہنا، اور خدا کی بات کو رد کرنا گمراہی میں چلے جانا ہے۔ اور ہم واضح طور پر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں خدا کا حکم سیدھی راہ اور خدا کی راہ پر نہ رہنا، یہ گمراہی ہے۔ اب جب ہم مذاہب، دینیات میں اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو اس سے مراد، اگر آپ اردو ڈکشنری میں دیکھیں تو ہے بھٹکا ہوا، راہ پر نہیں ہے، گمراہ ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا بھی، دکھاؤں گا بھی سلائیڈ میں، لیکن اس سے پہلے ایک کلپ بھی دکھاؤں گا، لیکن میں ابھی معنی بیان کر رہا ہوں۔ جب دینیات میں اس کے معنی آتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو واضح دلائل جو حق میں اس تک پہنچے ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے اور اتباع کرنے سے خود کو روکتا ہے، اور دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد، دلائل پہنچ جانے کے بعد اس کی اتباع نہ کرنے والا وہ گمراہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دینیات میں بے علم اور جاہل کو بھی گمراہ کہا گیا ہے۔ جو علوم ہیں، ایک تو علوم نبوت ہیں جو نبوتوں کے وسیلہ سے ہم تک پہنچتے ہیں، اور دوسرے علوم عقلیہ ہیں جو عقل اور دنیا سے ہم سیکھتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ پھر ہمیں پتہ چلے کہ جو نبوتیں ہیں، جب ان کی روشنی میں ہر بات کو دیکھنا ہے، اور جو ان کی روشنی میں نہیں چلتا وہ گمراہ ہے۔ اور اس کے لیے آپ عبرانیوں کا خط
उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत पढ़ सकते हैं। सूरह अल बकरा और उसकी 136वीं आयत पढ़ सकते हैं। ये नबूवतें कैसे दी गई हैं, किनको दी गई हैं, ताकि आप गुमराही के पस मंज़र से, मानों से वाकिफ़ हो सकें और आप जान सकें कि आप गुमराह हैं या आप खुदा की राह पर हैं। और दीनियात में बेवकूफ़, जाहिल, नासमझ, अनजान को भी गुमराह कहा गया है। तो उसके फल कैसे? तालीम तो है, उसका अमल जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन गुमराह है और कौन राह पर है। तो आइए ये क्लिप देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कि जितनी बीमारी इंडिया पाकिस्तान के अंदर है, ये फिर एक्सपोर्ट हो जाती है दुनिया के बाकी मुसलमान मुल्कों के अंदर। इस एतबार से ये वाकई गुमराही का किला है हमारा मुल्क बना हुआ इस वक्त। कि जितनी गुमराही है यही बाहर जाती है, एक्सपोर्ट होती है। दोस्तों, सुना आपने मिर्ज़ा जहलमी मुल्क पाकिस्तान वतन अजीज़ को गुमराही का किला कह रहा है। ऐसे फितने के आदमी को समझ में नहीं आएगा कि क्या करें, किसका साथ दें, किसका साथ ना दें। जैसे अंधेरी रात होती है, रोशनी का नामो निशान नहीं होता है, तो आदमी को समझ में नहीं आता कि दाएं जाएं, बाएं जाएं, सामने जाएं, पीछे जाएं या वहीं खड़े रहें। समझ में नहीं आता ना, वही से ये फितने आएंगे। ऐसे बड़े फितने होंगे कि सुबह में तो आदमी मुसलमान नज़र आएगा, शाम में देखेंगे तो मुसलमानों के साथ नहीं रहेगा, काफिर की तरह रहेगा। ऐसे भी होगा कि शाम में हम किसी को मुसलमान समझेंगे, बड़ा अच्छा है, दीनदार है, नमाज में भी आया था, सुबह में मालूम हुआ कि अरे वो तो ख़राब हो गया, वो तो उसका अक़ीदा बिगड़ गया, वो तो गुमराह हो गया। मेरा सच्चा साईं तू है, मैं तेरा बंदा, तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं, साईं। ये क्लिप आपने देखा और कुछ लोग कहेंगे शायद ये प्रोपेगेंडा है। यूट्यूब पर ये सब मौजूद हैं, कुतुबे मुक़द्दसा भी मौजूद हैं। सुबह को कोई मोमन होगा, शाम को मोमन नहीं रहेगा, फितने आ जाएंगे। मावां नू पीरा बचड़े देने, ये जो पीर है माओं को बच्चे दे रहा है
اور جو سجدے ہیں وہ انسانوں کو کیے جا رہے ہیں۔ مسیحیوں میں بھی بہت سی قباحتیں ہیں، چونکہ میری کوشش ہوتی ہے بات کو بیلنس کیا جائے، کوئی یہ نہ سمجھے پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ مسیحوں میں بھی بہت سے ایسے فرقے پائے جاتے ہیں جن میں اس قسم کی حرکات ہیں، اور وہ بھی ساتھ میں بات کرتے رہتے ہیں۔ ہندوؤں کی بات کریں گے تو فرق ہے، پھر سکھ مذہب ہے، بہائی ہے، دیگر ہے، اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ بات ہم یہ کر رہے ہیں گمراہی کتب کی روشنی میں ہم جان سکیں، پرکھ سکیں۔ آئیے اس تعلق سے کچھ احادیث، بائبل کی آیات اور قرآن کی آیات جلدی سے دیکھتے ہیں، پھر میرے ساتھ مہمان ہوں گے، ان کے ساتھ بھی بات کریں گے۔ تو آئیے کچھ آیات کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گمراہی کیا ہے؟ پہچان و حقیقی رہنمائی ضروری ہے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ اس معاشرے کی حالت جو بن چکی ہے وہ گمراہی یا خدا کی راہ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہے زاد راہ، اور اس میں سے یہ لی گئی ہے۔ میں نے کافی دفعہ دکھائی ہے یہ کتاب بھی آپ کو، پھر دکھا دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے خود یہ بنا لی ہے۔ یہ ہے کتاب زاد راہ، اس میں ہے، اس میں سے لے رہے ہیں۔ آپ صفحہ نمبر 31 پر دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہاں کیا لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تمہارا کیا حال ہوگا، لوگو تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر وہ فتنہ مسلط ہوگا جس میں تمہارے چھوٹے بچے بڑے ہوں گے اور بوڑھے اپنے بڑھاپے کی انتہا کو پہنچیں گے۔ اور فتنہ کیا؟ گمراہی، یعنی گمراہی کو سنت یعنی بھلائی سمجھا جانے لگے گا۔ غور کیجئے، سمجھا جانے لگے گا، اور اے لوگو یہ تم میں ہوگا، بڑی بات۔ اور پھر آگے لکھا ہے، اگر کوئی شخص اس فتنے کو ہٹانے کے لیے اٹھے گا تو لوگ کہیں گے یہ شخص ناپسندیدہ اور برا کام کر رہا ہے۔ جو گمراہی کی نشاندہی کریں گے ان کو برا کہا جائے گا۔ اور آپ فیس بک جو ہے شو کا اور ہمارے جو ویب پیج ہیں دیکھیں لوگوں نے کیا کیا الفاظ لکھے ہوئے ہیں جب سچ کی طرف لوگوں کو تلقین کی جاتی ہے۔ اور یہ حدیث بار بار پڑھیے اپنے بچوں کو، اسکولوں میں، کالجوں میں، جہاں بھی ہیں، آپ دیکھیے کہ فتنہ، گمراہی، اور جو شخص اس کو ہٹانے کے لیے اٹھے گا اسے ناپسندیدہ اور برا کام کرنے والا کہا جائے گا۔ کسی نے پوچھا ایسی حالت امت پر کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب تمہارے اندر ایماندار اور قابل اعتماد لوگ کم ہو جائیں گے۔ تو ایماندار جو ایمان پر چلنے والے اور قابل اعتبار جن پر اعتبار کیا جا سکے وہ کم ہو جائیں گے، تو یہ یاد رکھیے گا۔ اور اقتدار کی ہوس رکھنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ دین کے واقعی علماء، دین کے جو حقیقی علماء ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اور دین کے پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے زیادہ پڑھا جانے لگے گا۔ نیک کام کریں گے لیکن اس سے مقصود دنیا کا حصول ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، وہ نیک کام بھی کریں گے لیکن یہاں پر دیکھیں نیتیں وہ دنیا کے حصول کے لیے اور دیگر مفادات کے لیے کریں گے۔ تو بہت واضح بات ہے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ اور اس کی جب تفسیر کی گئی ہے، فتنہ سے مراد دینی انحطاط کم ہو جانا اور پستی کی وہ حالت ہے جس پر نسلوں پر نسلیں گزرتی چلی جائیں گی، نسلوں پر نسلیں، یہاں تک کہ اس دینی پستی اور گمراہی کو لوگ صحیح راہ سمجھنے لگیں گے۔ گمراہ، بھٹکا ہوا، اور اس گمراہی کو غور کیجئے، اس گمراہی کو لوگ صحیح راہ سمجھنے لگیں گے۔ جو لوگ اس گمراہی کو مٹانے کی کوشش کریں گے، گمراہ لوگ انہیں نکو بنا دیں گے، کہیں گے کہ یہ ان کا انکار کرنے والے بن جائیں گے، کہیں گے کہ یہ لوگ جو تحریک لے کر اٹھے ہیں باطل ہے اور ان کی ساری تگودو کوششیں غیر اسلامی ہیں۔ یہ کیفیت جس کا اوپر ذکر ہوا ہے اس دور میں پیدا ہوگی جس میں علم دین حاصل کرنے والے علماء اور فقہاء تو بہت ہوں گے لیکن ان کی نیتیں صاف نہ ہوں گی۔ یہ پیشہ ور علماء ہوں گے، بظاہر آخرت کا کام کر رہے ہوں گے لیکن مقصد دنیا کا حصول ہوگا۔ غرض حرص دنیا اور ہوس اقتدار کا عام غلبہ ہو جائے گا۔ آئیے آگے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان وہ کیا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تاکہ ہم انسان دیکھ سکیں
کہ اصل بات کو, اصل راہ کو جاننا کتنا ضروری ہے. ایک ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی ہی معلوم ہوتی ہے. ابھی اس حدیث میں بھی ہم نے دیکھا, وہ غلط راہ کو کہیں گے یہ درست ہے. ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. تو نتیجہ کیا ہے؟ آخر میں راہ آپ کو سیدھی نظر آ رہی ہے, لیکن جب منزل پر پہنچیں گے تو اس میں موت کی راہ نہیں, راہیں ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. گمراہ کے میں نے جیسے پہلے بھی بتایا, کھویا ہوا, برگشتہ, راستہ بھولا ہوا, بھٹکا ہوا, عام. اور میں نے دینیات کے جو معنی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کھول دیے ہیں کہ حق کی پہچان دلائل کے ہونے کے باوجود اتباع سے انکار کرنا, یہ ہے گمراہی. اب جناب عیسیٰ مسیح, یسوع مسیح, مسیحی خداوند مانتے ہیں, مسلمان بہن بھائی نبی مانتے ہیں. ان کے مطابق گمراہ کون ہے اور اس گمراہی کا سبب کیا ہے؟ گمراہ ہے لیکن کس سبب سے ہے یہ جاننا ضروری ہے. یسوع نے ان سے کہا, تم اس سبب سے گمراہ نہیں ہو کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو اور نہ خدا کی قدرت کو. تم کتاب مقدس کو, خدا کے کلام کو نہیں جانتے, اس کی معرفت, اس کی واقفیت جیسا اس کو سمجھنا چاہیے نہیں سمجھتے, جانتے نہیں, اور نہ خدا کی قدرت کو, خدا کے جلال کو. خدا اپنی قدرت سے جو تمہیں دکھاتا ہے, سمجھاتا ہے, تم اس کو بھی نہیں جانتے. سو کتاب مقدس کو نہ جاننے والا گمراہ ہے, کلام کو نہ سمجھنے والا گمراہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں یسوع مسیح. اور لکھا ہے آگے, گمراہی کے جو اسباب, دیگر اسباب ہیں, ان پر بات کر لیتے ہیں. وہ ہے تربیت پذیر زندگی کی راہ پر ہے لیکن ملامت کو ترک کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے. جب کلام خدا سے تربیت کی جاتی ہے تو اس کو ترک کرنے والے, اس کو نہ ماننے والے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اس میں بہت بڑی بات کو کھول دیا گیا ہے. پھر ہے بدی کے موجد گمراہ. تربیت پذیر زندگی کی راہ پر اگلی یہ بات ہے, کیا بدی کے موجد گمراہ نہیں ہوتے؟ بدی, برائی کو جنم دینے والے, اور یہ بڑی سخت بات ہے, بعض لوگوں کو بری لگے گی. برائی کے موجد, وہ برائی کو ایجاد کرتے ہیں جس جگہ پر بھی ہوتے ہیں. شفقت اور سچائی نیکی کے موجد کے لیے. کیا بدی کے موجد گمراہ نہیں ہوتے؟ جو برائی پیدا کرتے ہیں ان کو گمراہ کہا گیا ہے. وہ کسی بھی طرح سے کیوں نہ ہو, جو خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا بھلا ہے, وہ بھلائی پیدا کرتا ہے. اور جو کلام میں لکھا ہے بھلائی کرنا جانتا ہے, جس پر یہ بات کھل چکی ہے. جب وہ بھلائی نہیں کرتا, خدا کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے جو انسان اس کے چوگرد رہتے ہیں ان کے لیے بھلائی نہیں کرتا, جہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے, جہاں پر اس کو رکھا ہوا ہے, اس ذمہ داری میں وہ بھلائی پیدا نہیں کرتا, لکھا ہے وہ گناہ کرتا ہے. تو بدی کے موجد گمراہ ہیں, چاہے وہ زبان سے کہیں کہ وہ خدا کے پیروکار ہیں. اور پھر جھوٹ بولنے والا گمراہ ہے. یہاں پر لکھا شریر, شرارت کرنے والا, پیدائشی سے کج روی اختیار کرتا ہے, بری راہ پر جاتا ہے. وہ پیدا ہوتے ہی جھوٹ بول کر گمراہ ہو جاتے ہیں. جھوٹ بولنے والے جب جھوٹ بولتے ہیں ہلکی سی بات نہیں ہے, وہ گمراہ ہو جاتے ہیں جب خدا کے کلام پر جھوٹ بولتے ہیں, اپنے مفادات کے لیے, اپنے ایجنڈوں کو پروان چڑھانے کے لیے جھوٹ کی آمیزش کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اور یسوع مسیح نے کہا تھا جھوٹ بولنے والے کس کے فرزند ہیں؟ اس نے کہا تھا وہ شیطان کے فرزند ہیں. جھوٹ گھڑنے والے بھی شیطان کے فرزند ہیں. اور یسوع مسیح نے واضح کہا تھا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو, وہ شروع ہی سے جھوٹا ہے. تو یہ ہلکی سی بات نہیں ہے, کوئی جہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے اس کو گمراہ کہا گیا ہے, خدا کی راہ پر نہیں ہے. فریب خوردہ دل جو ہے وہ بھی گمراہ کر دیتا ہے. یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ راکھ کھاتا ہے, فریب خوردہ دل نے اس کو ایسا گمراہ کر دیا ہے کہ وہ اپنی جان بچا نہیں سکتا اور نہیں کہتا کہ میرے داہنے ہاتھ میں بطالت ہے. اب یہاں پر واضح طور پر ہے بطالت, بےہودگی, نکما پن. وہ کہتا ہے کہ جی یہ میرے داہنے ہاتھ میں بطالت نہیں ہے. بےہودگی, نکما پن اور فریب خوردہ دل, جس کا دل
خدا کے ساتھ خالص نہیں ہے، اس کے حکموں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی کہے۔ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعریف کرتے ہیں لیکن ان کے دل میرے کلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دل میں ان کا دل فریب کھا چکا ہے، دھوکے میں ہے، اور وہ یہ کہیں کہ وہ خدا کی راہ پر ہے، نہیں، ان کے دل نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، اے میرے لوگوں، تمہارے پیشوا تم کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ تمہارے چلنے کی راہوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ تمہارے پیشوا اور کبھی کبھی مشیر جو ساتھ ہوتے ہیں وہ پیشوا گمراہ ہیں جو خدا کی راہ کی بجائے اپنی راہوں کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ مشیر بھی جو خدائی رہنماؤں کو خدا کی راہ، خدا کے کلام کے خلاف مشورے دیتے ہیں، سب گمراہ ہیں۔ پھر ایک اور گمراہ کرنے والا ہے اور اس کو کہتے ہیں ابلیس، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس شیطان کہلاتا ہے، سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ شیطان بھی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور آگے دیکھ لیتے ہیں کہ کون گمراہ نہیں ہو سکتا۔ سورہ المائدہ اور اس کی 105ویں آیت ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں ہم، اے ایمان والو، پہلی بات، اگر کوئی ایمان پر ہے تم اپنی جانوں کی فکر کرو، تمہیں کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو، اگر ہو چکے ہو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں سے خبردار فرما دے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ اس آیت میں بہت بڑی بات ہے، ہدایت کی نشانیاں شرط ہے۔ اگر تم ہدایت پر ہو، اپنی فکر کرو، اے ایمان والو، پہلے تو ایمان ہے یا نہیں؟ 72 فرقے، جہنمی، ایک جنتی، کس کا ایمان؟ مسیحوں میں بہت سے فرقے، کس فرقے کا ایمان؟ تو یہ ضروری ہے کہ ایمان کی تصدیق کلام خدا کے مطابق ہو، اور ہدایت یافتہ ہو چکے ہو۔ تو ہدایت قرآن میں کن کتب کو کہا گیا ہے؟ ضروری ہے جانا جائے، پرکھا جائے ہدایت۔ اگر تم ہدایت پا چکے ہو تو کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، یہ اس کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں جی وہ گمراہ کر رہے ہیں، یہ گمراہ کر رہا ہے، وہ گمراہ کر رہا ہے۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اختلاف امت اور صراط مستقیم، اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ اس میں بہت واضح طور پر بتا دیا گیا ہے باقی جتنے فرقے ہیں وہ گمراہ ہیں، اور جو ایک فرقہ ان کا ہے وہ راہ پر ہے۔ تو جو ہدایت پا چکا ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت کس کو کہا گیا ہے پورے قرآن میں ہمیں پڑھنا ہے، ضروری ہے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں گمراہی سے نکلنے کی راہ۔ اے میرے بھائیو، اگر تم میں کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھیر لائے تو چانس ہے، واضح طور پر موقع ہے کہ جو راہ حق سے گمراہ ہے وہ واپس آ سکتا ہے۔ یہ خدا کا شکر ہے، خدا کی مہربانی ہے، خدا کی رحمت ہے، خدا کی ہمارے ساتھ محبت ہے کہ وہ ہمیں موقع دیتا ہے۔ جو راہ حق سے گمراہ ہو جائے، کوئی اس کو پھیر لائے، جو راہ پر ہے وہ اس کو پھیر لائے، تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گناہگار کو، یہاں پر کہا گیا جو گمراہ ہے وہ گناہگار ہے، کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا، وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ اس سے واضح ہو گیا جو گمراہ ہیں وہ موت کے خطرے میں ہیں، وہ خدا سے جدائی کے خطرے میں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے خدا سے دور ہو جانے کے خطرے میں ہیں۔ وہ ایک جان کو موت سے بچا لے گا، اس خطرے سے نکال لے گا، بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ گناہ خدا مٹا دیتا ہے۔ کیسے؟ اب اس گمراہی سے نکلا جائے، پہچان ضروری ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں سورہ مریم اس کی 21ویں آیت۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تعجب نہ کر، ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے یہ کام مجھ پر آسان ہے، اور یہ ہے اس لیے ہوگا کہ تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بنا دیں، اور یہ امر طے شدہ ہے۔ پہچان، ہم نشانی بنا دیں رحمت کی، خدا کا رحم کیسے ہوگا، اور یہ طے شدہ بات ہے۔ پہچان، آئیے آگے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے پطرس کا خط، اور جب وہ یسوع مسیح اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلے سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر پھر اس میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے، تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوگا، کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا
उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। बहुत वाज़ेह बात है यहाँ पर, यीशु मसीह की पहचान के वसीला से गुमराही से छूट कर रास्तबाजी की राह पर आ जाएं, और अगर कोई इस राह को जानते हुए भी फिर जाता है तो फिर गुमराही के नताइज हमने देख लिए हैं। मेरे साथ दो मेहमान भी हैं, उनसे बात करते हैं। इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आपको बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह का टॉपिक है कि गुमराही का, हमें एनालिसिस कैसे होगा कि हम गुमराह हैं, और अगर गुमराह है तो हमें सही शनाख्त किस तरह मिलेगी? जी बिल्कुल, यही बात कर रहे हैं। पूरा शो आप देख लेंगे ना अभी, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हम यही बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने ये कहा, तुम इस सबब से गुमराह हो। आपके सवाल का जवाब, किस सबब से? गुमराही का सबब क्या है? ना किताब मुकद्दस को जानते हो, ना खुदा की कुदरत को। तो किताब मुकद्दस को जानना और खुदा की कुदरत को हमने अभी सूरह मरियम 21वीं आयत अपने कुदरत की निशानी बना दिया है, कुदरत की निशानी बना दिया है। और किताब मुकद्दस इस बारे में क्या कहती है, यही हम बात कर रहे हैं। आप पूरा शो देखिए और उसके बाद अगर आपका कोई सवाल होगा तो फिर आप हमें बताइएगा। अब अगर आपके पास अंजील हो, कोशिश आप करें कि आपके पास अंजील हो। अब यीशु मसीह जब ये बात कर रहे हैं ना किताब मुकद्दस की, तो फिर यूहन्ना की अंजील 5वां बाब और उसकी 39-40वीं आयत में वो ये कहते हैं कि तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। फिर 7वें बाब में वो कहते हैं, फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। किताब मुकद्दस में पढ़ते हो जिंदगी मिलती है, कैसे? फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास क्या आना नहीं चाहते। और वो इस बात को फिर आगे खोल देते हैं 7वां बाब और उसकी 42वीं आयत में, क्या किताब मुकद्दस में ये नहीं लिखा कि मसीह दाऊद की नस्ल से आएगा? अब वाज़े हो जाता है कि किताब मुकद्दस बता रही है कि राह कौन सी है जो तुम्हें गुमराही से बाहर ले आती है, और ज़ातुल मसीह की तरफ निशानदही की गई है। इसीलिए मसीह ने फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। तो आप पूरा शो देखिए, कुछ और हवाला जात भी हैं जो मैं बाद में दूंगा, तो फिर आप बताइएगा कि आपको क्या समझ आई और क्या समझ नहीं आई, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है जनाब? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो आप अंजील भी रखिए, और जब वो कह रहे हैं गुमराह कौन है जो किताब मुकद्दस को नहीं समझता, तो वाज़े तौर पर जो ही बाब 7 में जाते हैं तो वो कह देते हैं 7:38 में, फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। गो कुरान और तौरेत और ज़बूर और अंजील राह दिखा रहे हैं, फिर भी अगर कोई जिंदगी पाने के लिए उनके पास नहीं आना चाहता तो फिर गुमराही गुनाह है और गुनाह की मजदूरी मौत है। तो आप देखिए शो, फिर बात आपसे होती रहेगी। हमारे साथ 2 मेहमान हैं, तो पहले मेहमान से मैं मुतारफ़ करवाना चाहता हूँ। अरसा दराज से खुदावंद की खिदमत में हैं और इल्म इलाही पर वे दस्तरस्त रखते हैं, मोहतरम पास्टर परवेज़ खोखर साहब। सर खुश आमदीद, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके शो में। जी बहुत शुक्रिया सर। अब गुमराही के बारे में मैंने तफसीलन कुछ बातें कुछ वक्त लिया ताकि लोगों को पता चल जाए कि किताब मुकद्दस क्या कहती है और उसमें क्या पैगाम है, और जो लोग इस पैगाम को कबूल नहीं करते वो गुमराही में हैं, चूँकि ना वो किताब मुकद्दस को समझते हैं और ना खुदा की कुदरत को। मसीह कुदरत खुदा की निशानी बनकर आए, सूरह मरियम 21। तो जनाब आपसे मेरा सवाल ये होगा कि किताब मुकद्दस को लोग नहीं समझते। ये तो सदूकी लोग थे जो एक ग्रोह था जिनके साथ मसीह बात कर रहे हैं मरकज़ की इंजील में। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप वजूहात बताइए कि क्या असबाब हैं कि लोग खुदा
की दी हुई किताब, जिसको किताब मुकद्दसा बाइबल कहा गया है, नहीं समझते। गो वो टीचर्स भी हैं, आम इंसान भी हैं, तालिब इल्म हैं, क्या वजूहात हैं वो समझ नहीं पाते, ताकि लोग आज भी उन वजूहात को जान सकें और फिर समझने के लिए जो राह है उस तरफ आ सकें। जी डॉक्टर दानियाल, इसी पैराग्राफ की रोशनी में हम देख सकते हैं कि जब खुदावंद यीशु अल मसीह ने उनसे कहा, ना तुम किताब मुकद्दस को जानते हो ना उसकी कुदरत को, ये सदूकी लोग जो क़यामत को नहीं मानते थे, और जब उन्होंने अल मसीह से ये सवाल किया, और इस सवाल में जो वो सवाल था उसकी तफसील में जाए बगैर मैं ये कह सकता हूं कि जब वो ये पूछ रहे थे कि क़यामत के दिन वो किसकी बीवी होगी, और वो इस बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यानी सियाको सबाक के बगैर, आज भी हमारी दुनिया में बहुत से आलमुल दीन, बहुत से मुफक्कर ऐसे हैं, किताब मुकद्दस वही है जैसे इन सदूकियों ने कोट किया कि मूसा ने हमसे कलाम करके ये कहा है, लेकिन जो मूसा ने कलाम किया उसके मानी ये नहीं थे जो वो बयान कर रहे थे। आज भी जिंदगी बख्श कलाम की बहुत सारी बातें जो हैं, लोग कलाम की उस सदाकत को लेने की बजाय उस पर तनकीद करके और उसके मानी को मसख करके पेश करते हैं, और गोया ये एक गुमराही है जब आप कलाम मुकद्दस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यानी सियाको सबाक यानी जो खुदा का कलाम कहता है वो नहीं, और उसे अपने मानी बना देते हो, और ये खुदावंद ने बताया कि ये एक तरह की गुमराही है। तो आप थोड़ी सी और रोशनी डालिए कि एक तो आपने बताया कि लोग सियाको सबाक से हटकर किताब मुकद्दस की तफसीर खुद करना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं किताब मुकद्दस में से निकालें। तो एक तो ये वजह हो गई कि लोग खुद अपनी तालीम, खुदा की तालीम को जैसे वो मिलती है कबूल नहीं करते, अपने माने पहनाकर लोगों को चाहते हैं कि वो इसको कबूल करें। तो एक तो आपने ये वजह बताई, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा और कौन सी वजूहात हैं कि लोग किताब मुकद्दस को नहीं समझते? जी, जिंदगी बख्श कलाम में खुदा की राह बड़ी वाज़े है। और दूसरी मिसाल अगर हम इस्तिस्ना की किताब में से देखें कि बनी इसराइल के इर्द गिर्द जो कौमें थी, और वो कौमें जो थी अजराम फलक को और सूरत को, और खुदा ने इस्तिस्ना की चौथे बाब में बड़ा वाज़े तौर पर इन लोगों से कलाम किया कि जब मैंने आग में से होकर हुरब में तुमसे कलाम किया तो तुमने कोई सूरत नहीं देखी, ताकि तुम बिगड़कर किसी इंसान की सूरत या अजराम फलक की सूरत या कीड़े मकोड़े की सूरत बना दो। और गोया कि ये एक वाज़े निशान है कि खुदा ने इन्हें ये वाज़े तौर पर कर दिया था। आज हम अपनी दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो जिंदा खुदा ने जब ये वाज़े बात बता दी थी, उसके बावजूद गुमराही ये है कि जिंदा खुदा को छोड़कर आज बहुत से इमेजेस, बहुत सी सूरतें, बहुत सी ऐसी कबाहतें, बिद्दात शामिल है। जैसे अभी आपने क्लिप भी दिखाया कि इंसान जो है वो औलाद दे रहा है या किस तरह से। तो जिंदा खुदा को छोड़कर, जिंदा खुदा के कलाम की बातों से हटकर कोई शख्स अपनी इजाद कर ले, अपनी इख्तरा पैदा कर ले, और ये गुमराही की एक दूसरी सूरत है। इसलिए कहा था कि बड़ा एहतियात करके अमल करना। मैंने जब तुमसे कलाम किया था कोई सूरत तुमने नहीं देखी, लेकिन अगर आज तुम सूरतें बनाते हो, मूर्तें बनाते हो, शक्लें बनाते हो, तो ये एक गुमराही की राह है। जी, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब ने इन बातों को खोला है, और मैं इसके साथ थोड़ा सा इजाफा कर देना चाहता हूँ। किताब मुकद्दस को लोग क्यों समझ नहीं पाते? तो इसमें एक तो पास्टर साहब ने बताया कि सियाको सबाक को नहीं समझते, जो कुछ लिखा हुआ है उसके मानों को समझना नहीं चाहते। अब इसके साथ जो मैं बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये हैं कि लोगों के दिल सख्त हैं खुदा और उसकी तालीम की तरफ। जब तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। किताब मुकद्दस की आवाज़ जब आप तक पहुंचती है
आयात आप तक पहुंचती हैं तो ये शख्सी रद्द-ए-अमल ज़रूरी है कि जब आप सख्त दिल से मुराद है, आप कबूल करने के लिए तैयार नहीं, आप वो जगह कलाम को देने के लिए तैयार नहीं है जब खुदा आपसे कह रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी में, आपके मुआशरे में, आपके इर्द गिर्द, आपके ख़ानदान में ये बातें खुदा के कलाम से मुतसादम हैं, तो उस वक्त हमारा रद्द-ए-अमल कबूल करने वाला है, बदलने के लिए कायल होने वाला है, या हमारा दिल सख्त है। तो इंसानों के दिल की सख्ती, पहली बात कि वो कलाम खुदा को रद्द करते हैं, किताब मुकद्दस को कबूल नहीं करते और फिर वो नाफरमानी में चले जाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि झूठे असातिज़ा हैं जो कलाम खुदा की तफसीर अपने मफादात, अपने नज़रियात के मुताबिक करते हैं और वो चाहते हैं कि लोग उनकी तालीमात को किताब मुकद्दस की तालीम माने। इसलिए भी लोग किताब मुकद्दस से दूर रहते हैं और झूठे असातिज़ा, ये जो खतूत लिखे गए हैं नए अहदनामा में, वो सारे के सारे तकरीबन झूठी तालीमात का जवाब हैं ताकि लोग किताब मुकद्दस से दूर ना चले जाएं। झूठे असातिज़ा किताब मुकद्दस से लोगों को दूर ले जाते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि शैतान है, अगर हम तीमुथियुस के ख़त में चले जाएं तो तीमुथियुस के ख़त में हमें मिलता है कि आखिर ज़माना में लोग, चौथे बाब से पहले तीमुथियुस, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूहों और शैतान की तालीम की तरफ मुतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ऐसी रूहों की तालीम जो खुदा के लिखे हुए कलाम से मुतसादम होगी और लोग उस तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे और किताब मुकद्दस से दूर हो जाएंगे। मुख्तसरन मैं बयान कर रहा हूं। और फिर लिखा हुआ है आखिर ज़माना में ही कि लोग दीनदारी की वजह तो रखेंगे लेकिन इसके असर को कबूल नहीं करेंगे, कबूलियत के लिए कायल नहीं होंगे, किताब मुकद्दस को समझने, जानने, उसका अरफान हासिल करने, उससे बरकत पाने से महरूम रह जाएंगे। पास्टर प्रवेश साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस बात को वाज़े किया है, खोला है कि क्यों लोग किताब मुकद्दस से दूर रहते हैं। और इसके साथ ये भी लिखा है कि इस जहान के खुदा ने लोगों की अक्लों को तारीक कर दिया है, और लिखा है नूर तारीकी में चमकता है लेकिन तारीकी ने उसे कबूल नहीं किया। ये फिर वही बात आ गई कि शैतान और इंसान जब शैतान की बात मानेंगे, तारीकी में होंगे, नूर से दूर रहने की कोशिश करेंगे। नूर जब हमारी हालतों को हमारे ऊपर खोलता है, हमारी जिंदगियों को जो गैर खुदाई तालीम और रवैयों में है, जब वो आईना हमें दिखाया जाता है तो फिर हम शैतान की मानते हैं और किताब मुकद्दस से दूर रहते हैं। ये हमारे ऊपर इन्हिसार है। अगर ऐसा है तो किताब मुकद्दस को मानने की वजूहात बहुत वाज़े हैं। अगर आप ऐसा करते रहे हैं, कर रहे हैं, माजी में किया है, तो ज़रूर है कि हम इन हालतों से बाहर आएँ और किताब मुकद्दस को समझने के लिए खुदा से दुआ मांगे। जिस तरह से खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मुझे अपने आइन सिखा, मुझे अपनी राह पर चलना सिखा। और खुदा के बंदे मूसा को जब खुदावन ने उसके साथ कलाम किया तो खुदा ताला ने फरमाया, मैं तुझे सिखाता रहूंगा। ये दुरुस्त रवैया है, ऐ खुदा मुझे अपने आइन सिखा, मेरी आंखों को खोल ताकि मैं गुमराही में ना रहूं बल्कि तेरी राह पर चलता रहूं। और हजरत दाऊद ही ये भी फरमाते हैं, तेरी शरीयत में, तेरे अहकाम में मेरी खुशनूदी है, किसी और बात में नहीं है। बहुत शुक्रिया पास्टर प्रवेश साहब, आपने इस बात को खोला। एक और मेहमान हमारे साथ हैं, मुतारिफ करवाना चाहता हूं आपसे, जनाबे बिशप सोहनलाल साहब। बिशप साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डैनियल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बड़ी खास बात पे बात करने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, और खुदा ने फिर से मौका दिया कि आपसे इस मौजू के ऊपर बात कर सके। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैं शुक्रगुजार हूँ, आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं। अब आपसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मसीह ने कहा लोग किताब मुकद्दस को नहीं समझते इसलिए वो गुमराह हैं। तो कलाम खुदा में ये फिर हमें बात मिलती है कि हम
ध्यान रखें कि किताब मुकद्दस को समझते हैं, उसको जानते हैं, ताकि गुमराही से बाहर रहें। तो कलाम में यह भी लिखा है कि आखिर ज़माना में जो ईमानदार हैं वो भी गुमराह हो सकते हैं। शागिर्द जो हैं अगर वो किताब मुकद्दस को नहीं समझते तो वो भी फिर इसी खतरे में आते हैं। कलाम खुदा इस ताल्लुक से क्या कहता है, मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। खुदावन इंसान की रहनुमाई और अपनी राह की तरफ से अपने कलाम से करता है, ताकि इंसान उसकी और गुमराही से वाकिफ हो सके और इन सब बातों को पूरा कर सके मसीह के कलाम के द्वारा। सो आए उस कलाम से बात करें। जैसे आपने कहा है कि क्या पाक और ईमानदार लोग भी गुमराह हो सकते हैं, तो इसके लिए कलाम खुदा हमें सिखाता है। कलाम खुदा में हम जब देखते हैं लूका की किताब, लूका की इंजील, उसका 24 अध्याय, उसकी 25वीं आयत में, जहां पर खुदा का कलाम हमें इस प्रकार बताता है, जिसे मैं पढ़ना चाहूंगा अपनी पाक मुकद्दस बाइबल से, जहां पे लिखा है, उसने उनसे कहा, ए नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ना जरूरी ना था? फिर मूसा और सब नबियों से शुरू करके नबिस्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी गई हैं वो उनको समझा दी। यानी यहाँ पे बात कर रहे हैं खुदावन अपने दो शागिर्दों से जो इमाउस के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। इमाउस के रास्ते जो यरूशलेम से 7 मील की दूरी के ऊपर है, जो इमाउस के रास्ते, ये बात हो रही है खुदावन की मुर्दों में से जिंदा हो जाने के बाद की बात हो रही है। जब तक उसके शागिर्द इस बात को पूरी दुनिया में नहीं समझ पाए तो खुदा का कलाम पूरी दुनिया में कैसे पहुंचेगा? तो खुदा के उन दो शागिर्दों को खुदावन यीशु मसीह यहां पर आकर मिले और उन्हें नबियों की और खुदा की कुदरत की बातों के बारे में फिर से बताया, जिससे कि उनके जहन खुल गए, उनके जहन खुल गए और उनके दिल खुश हो गए और उन्होंने खुदा को पहचान लिया और पाक और ईमानदार लोग गुमराही के रास्ते पे जाने से बच गए। ये हो सकता है कि पाक और ईमानदार लोग भी गुमराह हो सकते हैं, लेकिन अगर खुदा हमारा जहन खोल दे, जिसके लिए हमें खुदा को कहने की जरूरत है कि खुदा हमारा जहन खोले, जिससे कि हम उसकी उन तमाम नबियों की और उसकी कुदरत को जान सके, जिससे कि किताब मुकद्दस हमें बताती है। तो ये हम सब के लिए गुमराही से बचने का एक तरीका है, गुमराही से आजाद रहने का एक तरीका है, जिसे खुदावन हमें बताता है और हमें चलाता है। आज जैसे हम देखते हैं कि दो शागिर्दों को खुदा ने इन बातों के द्वारा समझाया और सिखाया, जिससे कि उनके दिल जोश से भर गए। जैसे कि किताब मुकद्दस में लिखा है, इसी अध्याय में आगे चल के हम देखते हैं 32 आयत में कि उनके जो दिल जोश से भर गए। और उसके बाद हम देखते कि खुदा ने 44 वर्ष में और 45 वर्ष में भी इस बात को क्लियर करके दिखाया। और मैं 45 आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि वो किताब मुकद्दस को समझे। यानी कि ये बात जरूरी है, अगर हम खुदा की किताब मुकद्दस को जानते हैं, नबियों की और खुदा की कुदरत को हम जानते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये बात भी मान लेना और समझ लेना बहुत जरूरी है कि हम खुदा से कहें कि खुदा हमारा जहन खोले, खुदा हमारे जहन को इस प्रकार खोले कि हम खुदा की कुदरत को पूरे तरीके से समझ सके, ताकि गुमराही के रास्ते से हम बच सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डैनियल। बहुत शुक्रिया मोहतरम बिशप साहब ने बहुत वाज़े नकात। ये शागिर्द हैं यीशु मसीह के, और लिखा है कि उसने सारी नबूवतें, किताब मुकद्दस में जो नबूवतें ज़ातुल मसीह के ताल्लुक से हैं उनको समझाया। तो क्या पहले वो इससे वाकिफ नहीं थे? वाकिफ थे लेकिन समझते नहीं थे। आज बहुत से लोग, अभी एक कॉलर ने कहा, इसीलिए मैंने कहा कि आप पूरा प्रोग्राम देखिए कि ज़ातुल मसीह, किताब मुकद्दस, तुम मेरे बारे में पढ़ते हो लेकिन मेरे पास जिंदगी पाने के लिए आना नहीं चाहते। और फिर ये कैसे हैं, किस तरह से ज़ातुल मसीह को पेशनगोइयों में पेश किया गया है, यह जानना बहुत जरूरी है। और फिर बिशप साहब ने
45वीं आयत पढ़ी है, फिर उसने उनका जहन खोला कि किताब मुकद्दस को समझें। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहन, मसीही असातिज़ा, पास्टर साहबान, मिशनरीज, मुसलमान, हिंदू, सिख, किताब मुकद्दस शागिर्द राह पर हैं, नहीं समझे। उसने उन्हें तमाम नबूवतें, यीशु को अगर जानना है, ईसा मसीह की ज़ात को अगर समझना है, तो जो किताब मुकद्दस फरमाती है, और फिर लिखा है किताब मुकद्दस का बातिल होना यह मुमकिन नहीं है। किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं है कि इसकी बातें टल जाएं, आसमान और जमीन टल जाएंगे। लेकिन अगर कोई इन बातों को समझता नहीं, तो फिर जो गुमराही में मंजिल मौत है वो है। और अगर कोई इन बातों को समझ जाता है, मसीह में सब भेद खुल जाते हैं। बिशप साहब, आपसे मैं ये भी दरख्वास्त करूंगा कि ये आखिर ज़माना में लिखा हुआ है कि बरगजीदा ईमानदार भी गुमराह हो सकते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल भाई, जब तक हमारा जहन नहीं खुलेगा, जब तक खुदा हमारे ऊपर इस बात को पूरी तरीके से जौहर नहीं करेगा, तब तक ईमानदार और पाक लोग भी गुमराह होने के खतरे में हैं। तब तक ईमानदार और पाक लोग भी गुमराह होने के खतरे में हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान की और तबाही की हम उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन खुदावन का, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, उसका वही फजल अगर हम सबकी जिंदगियों को उस जहन्नुम की आग से बचाकर उस जन्नत में, हमेशा की जिंदगी में, सदीपक जिंदगी में ले जा सकता है, तो मेरा ये मानना है, मैं विश्वास करता हूं, इस बात के ऊपर ईमान रखता हूं कि खुदा अपने फजल से हमारा जहन खोल सकता है और हमें इस गुमराही के रास्ते से बचा भी सकता है। बहुत शुक्रिया। गुमराही पर क्यों चले जाएंगे, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देना चाहता हूं कि बरगजीदा भी शायद गुमराह हो सकते हैं, इसलिए कि लिखा है बहुत से झूठे मसीह आएंगे और बहुत से ऐसे लीडर जिनको शैतान उठाएगा, वो मौजज़े करेंगे, मुर्दे तक जिंदा कर देंगे। लेकिन अगर कोई शख्स कलाम खुदा में, किताब मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस की नबुव्वतें जो ज़ातुल मसीह के ताल्लुक से खोल दी गई हैं कि पहचान कैसे होगी, वो मौजज़े जो यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसके पैरोकार करेंगे, उनके वसीला से खुदा करेगा, वही खुदाई मौजज़े हैं। लेकिन अगर मसीह उन मौजज़ों में मरकज़ नहीं है, अगर उन मौजज़ों में मसीह को जलाल नहीं मिल रहा, अगर उन मौजज़ों में आपकी रहनुमाई किसी और तरफ की जाती है, तो याद रखिए, अगर यीशु मसीह मरकज़ नहीं, यीशु के जलाल के लिए नहीं, तो गो मुर्दे भी जिंदा हों, तो याद रखिए लोग गुमराह हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें, जानें कि किताब मुकद्दस क्या फरमाती है। और अमाल की किताब के 17 बाब और 11वीं आयत में जब ये तालीम, यीशु की तालीम, यीशु मसीह में जिंदगी, यीशु मसीह गुनाहों को मुआफ करता, यीशु मसीह हमेशा की बादशाहत में ले जाता है, उसने फरमाया मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। उसका नाम यीशु रखना, वो लोगों को उनके गुनाह से नजात देगा, छुटकारा देगा, रिहाई देगा। और उसने फरमाया जहां मैं हूं वहां मेरे मानने वाले भी होंगे, हमेशा से हमेशा तक जिंदा यीशु, ये उसका पैगाम। और अमाल की किताब में जब लोगों तक ये पैगाम पहुंचा, 17 बाब 11वीं आयत, तो वो किताब मुकद्दस में तहकीक करने लगे। अगर निकलने की बात है, गुमराही में नहीं रहना, किताब मुकद्दस को जानना है, तो फिर लिखा है वो किताब मुकद्दस में तहकीक करने लगे कि तमाम बातें कहां पर पूरी होती हैं। मत्ती की अंजील 5वां बाब 17 आयत, यीशु मसीह ने फरमाया मैं तौरेत अंबिया की कुतुब को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं पूरा करने आया हूं। पास्टर प्रवेश साहब, यीशु मसीह में गुमराही से कैसे लोग निकलकर क्या पा सकते हैं?
बड़ी तफसील सारी बातों की बयान की गई है और एक ही रास्ता और एक ही तरीका है। पाक कलाम में लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। ज़बूर 32 की 8वीं आयत में लिखा है, मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मेरी नजर, मैं तुझे सलाह दूंगा और मेरी नजर तुझ पर होगी। अगर इस पाक कलाम के साथ दिल लगे और खुदा की रहनुमाई के लिए सिद्ध के दिल से कोई ईमानदार अपने आप को करे, तो खुदा उसे इन तमाम गुमराहियों से, जो झूठे उस्तादों, झूठे नबियों, शैतान की तालीम और इन सारी बातों से वो बच सकता है। लेकिन की यही है, कुंजी यही है कि जिंदगी बख्श कलाम को समझने के लिए जब तक रूहुल कुद्स ज़हन ना खोले और ईमान के सबब से इस पर पूरा ध्यान ना हो, हम इन गुमराहियों से बच नहीं सकते। बहुत शुक्रिया पास्टर प्रवेश साहब, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको तमाम अहबाब को एक हदीस इस दौर में, अखीर दौर में जो हम तक पहुंची है, ये किताब है अल-ख़ाइसुल अल-कुबरा, मुसन्निफ हैं अल्लामा जलालुद्दीन सयूती। अब हम देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए, निकलने की राह कौन सी है। तो आइए पढ़ते हैं, ये सफ़ा नंबर 308 पर है। मैं आप तमाम अहबाब के सामने पढ़ना चाहता हूँ। हज़रत मुआज़ बिन जबल अलैहिस्सलाम से रवायत है, उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अतियात को लो जब तक वो अतिया हों, और जब वो दीन के खिलाफ रिश्वत बन जाए तो उसे ना लो। मेरी इस हदायत के बावजूद तुम लोग उसे ना छोड़ोगे और फ़क्र व फाका के खौफ से इससे बाज ना आओगे। सुन लो, ईमान की चक्की गर्दश में है, जिस तरह किताब अल्लाह हो, जिस तरफ किताब अल्लाह हो इसी तरफ तुम घूम जाओ। खबरदार सुन लो, बादशाह और किताब अल्लाह दोनों जुदा जुदा हो जाएंगे, तो तुम लोग किताब अल्लाह को ना छोड़ना। खबरदार आगाह रहो, तुम पर ऐसे हुक्मरान आएंगे कि तुमने उनकी अताअत की तो तुम गुमराह हो जाओगे, और अगर तुमने उनकी नाफरमानी की तो तुम कत्ल कर दिए जाओगे। तुम गुमराह हो जाओगे। सहाबा रिज़वानुल अलैहिस्सलाम और जमीन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ज़माने में हमें क्या करना चाहिए? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़माना में वो करना जो हज़रत ईसा के असहाब ने किया। इस ज़माने में वो करना जो हज़रत ईसा के असहाब ने किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम वो करना तो जो हज़रत ईसा के असहाब ने किया। अनाजील में लिखा है कि उन्होंने क्या किया, आगे पढ़ लीजिए। असहाब ने किया, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और आरों से उन्हें चीरा गया। अल्लाह ताला की अताअत में मरना खुदा की मसीयत में जीने से बेहतर है। इस ज़माने में वो करना जो हज़रत ईसा के असहाब ने किया। गुमराही के दौर से निकलने की राह अहादीस मुबारका आपके सामने रख दी। क्या करना, आपको करे या ना करे उसकी अपनी मर्जी है। क्या करना? शागिर्द पतरस रसूल मसीह का शागिर्द, उसने कैसे पैरवी की? यूहन्ना उसका भाई और 12 शागिर्द, उनके नाम मौजूद हैं, मत्ती, तोमा, दीगर। उन्होंने यीशु मसीह की पैरवी कैसे की? ये हदीस आपके सामने है, मुख्तलिफ अहादीस की किताब में मिल जाएगी। वो करना जब फितने आ जाएंगे, गुमराही का दौर होगा, वो करना जो ईसा मसीह के इस सहाबा ने किया है। कैसे किया है वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। वो कहाँ मिलेगा? वो तो अनाजील में है, तो फिर अनाजील को पढ़ना पड़ेगा। तो ये हम सब के लिए
तुम किताब मुकद्दस में मेरे बारे में पढ़ते तो हो, मेरे मालिक, मेरे खुदावंद, मेरे मुनज्जी, मेरे आका के अल्फाज, तुम किताब मुकद्दस में मेरे बारे में पढ़ते तो हो, लेकिन तुम जिंदगी पाने के लिए, 7वां बाब यूहन्ना 38, लेकिन तुम जिंदगी पाने के लिए, मौत से निकलने के लिए, गुमराही से निकलने के लिए, गुनाह की तबाहकारियों से बचने के लिए और गुमराही की तबाहकारियों से बचने के लिए, महफूज होने के लिए, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए, गुनाहों की माफी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यीशु मसीह गुमराहियों से निकालकर हक की राह बनकर आया है। मेरे मेहमान पास्टर प्रवेश साहब, बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे मेहमान जनाब मोहतरम पास्टर बिशप सोहनलाल साहब कीमती वक्त निकालते हैं, मैं शुक्रगुजार हूं। और सबसे बढ़कर मैं अपने मालिक खुदा जुल जलाल, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, जो आज आप सब तक अपनी मोहब्बत का पैगाम, निजात का पैगाम, जिंदगी का पैगाम पहुंचा रहा है। अहदीस मुबारका मैंने आपके सामने रख दी, किताब मुकद्दस की किताबों में से जो नबूवतें हैं वो आपके सामने रख दी। अब फैसला आपका है, किन की पैरवी करना। अहदीस में से वाज़े आप तमाम अहबाब के सामने रख दिया। और फिर सूरह मरियम 21वीं आयत, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, यीशु मसीह आपकी फिक्र करते हैं, यीशु मसीह आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपके खानदान में आना चाहते हैं, आपके शहरों में, आपके मुल्कों में, आपके चर्चेज में, आपके मंदिरों में, आपके गुरुद्वारों में आना चाहते हैं, ताकि जिंदगी, मोहब्बत, भाईचारा, मसावत और गुनाहों से रिहाई ना फक्त तालीम रहे, बल्कि आपकी जिंदगी का अमली हिस्सा बन जाए। क्या आप उनको दावत देना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में आए, आपके खानदान में आए, आपके चर्चेज में, मंदिरों में, मस्जिदों में, ताकि हम वो बरकत जो किताब मुकद्दस के वसीला से ज़ातुल मसीह में हम तक पहुंचाई गई हैं, उनका हकीकी तजर्बा कर सकें। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। हमें अपने मशवरों से नवाजते रहिए, राय से नवाजते रहिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए और इस प्रोग्राम को जब आप डाउनलोड करें तो दूसरे अहबाब तक भी पहुंचाएं, ताकि ज़िंदगी का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम तमाम इंसानों तक पहुंचे और हम खुदाई रंग में रंग जाएं, उसके कलाम में रंग जाएं, चूँकि यही वो रंग है जो इस दुनिया को जन्नत में बदल सकता है, जहाँ उसकी बादशाहत, उसकी हुक्मरानी, उसकी पाकीज़गी, उसकी उल्फत, उसकी चाहत तालीम नहीं रहती, ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। इजाज़त चाहता हूँ, आपका मेज़बान दानियाल।